ہم خطے میں امن کے خیر خواہ ہیں۔ پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر امن کا پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان نے مودی سرکار کو ٹیبل ٹاک کی دعوت دی تھی۔ کہتے ہیں ہم نے پہلے انتظار کیا اور پھر ایکشن لیا۔ میرا سوال یہ ہے ہندوستان سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں، کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی، نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی۔ اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے، ہم نے آپ کو کہا کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں، لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل۔ ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہیے۔ 1965 کی جنگ میں دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے والے میدان میں آ گئے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ریٹائرڈ فوج بھی ان ایکشن۔ صدر سوسائٹی میجر ریٹائرڈ عبدالرحمان کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ریٹائرڈ فوجیوں کو اپنی خدمات فوج کے حوالے کرنے کے لیے تیاری کا حکم۔ حال کے پیش نظر صدر ایکس سروس مین سوسائٹی میجر ریٹائرڈ عبدالرحمان کی جانب سے ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جس میں ریٹائرڈ فوجیوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی اور کہا گیا کہ اپنے اپنے یونٹوں میں رابطہ کر کے اپنی خدمات پاک فوج کے سپرد کرنے کے بارے آگاہ کریں۔ اجلاس میں بھارتی ایشیا کے بائیکاٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ ریٹائرڈ فوجی اپنے اپنے علاقوں میں اکٹھے ہو کر عوام کو جنگی حالات سے آگاہ کریں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جنگی صورتحال کے پیش نظر ہسپتالوں میں بیڈز خالی کرا دیے گئے۔ خون کی بوتلیں، ادویات کی موجودگی یقینی بنا دی گئی۔ ڈاکٹرز، نرسوں اور پیرامیڈک سٹاف کو آن کال رہنے کا حکم۔ جنگی صورتحال کے پیش نظر محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں میں انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق دیہی مراکز صحت، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں بیڈز خالی رکھوا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہسپتالوں میں بلڈ بینک میں خون کی اضافی بوتلیں بھی جمع کر دی گئی ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی ادویات کی موجودگی بھی یقینی بنا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، نرسوں اور پیرامیڈک سٹاف کو بھی آن کال رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جب انہیں بلایا جائے تو وہ فوراً اپنے متعلقہ ہسپتال پہنچیں اور اپنی خدمات کے فرائض سر انجام دیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن معطل، سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد ریلویز کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ ٹرینوں کے لیے ایک ہفتے کا اضافی تیل بھی سٹاک کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے اپڈیٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن معطل، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ فیصل آباد ریلویز کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ ٹرینوں کے لیے ایک ہفتے کا اضافی تیل بھی سٹاک کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے، فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ فیصل آباد ریلویز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ٹرینوں کے لیے ایک ہفتے کا اضافی تیل بھی سٹاک کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد ریلویز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پاک بھارت کشیدگی پر قرارداد جمع کروا دی گئی۔ پاکستانی نژاد ایم پی فیصل رشید نے اسپیکر برطانوی پارلیمنٹ کو قرارداد جمع کرائی۔ پاکستان امن کا خواہش مند ہے، دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، جنگ خطے کے لیے خطرناک ہے، خطے میں امن کے لیے دونوں ملک مذاکرات کریں، ایسا کہنا ہے فیصل رشید کا۔ آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں پاک بھارت کشیدگی پر قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ پاکستانی نژاد ایم پی فیصل رشید نے اسپیکر برطانوی پارلیمنٹ کو قرارداد جمع کرائی ہے۔ پاکستان امن کا خواہش مند ہے، ایم پی فیصل رشید کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ I'm deeply disappointed and worried about the escalation between India and Pakistan. Both countries are nuclear power and they must get around the table to resolve these issues. I've been to Pakistan recently and میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی، جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، اس کی فارن پالیسی یہ ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے، یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے خطے کی سٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ملک جو ہیں راؤنڈ دا ٹیبل بیٹھیں، ڈسکس کریں۔ میں نے ابھی ارجنٹ کویسچن جو ہے وہ سبمٹ کیا اسپیکرز آفس، اگر وہ گرانٹڈ ہوتا ہے اور میرے اور کولیگز نے بھی کیا ہے تو آج ہم یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے۔ I'm deeply disappointed and worried about the escalation between India and Pakistan. Both countries are nuclear power, and they must get round the table to resolve these issues. I've been to Pakistan recently, and میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی، جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، اس کی فارن پالیسی یہ ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے خطے کی سٹیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ملک جو ہیں راؤنڈ دا ٹیبل بیٹھیں، ڈسکس کریں۔ میں نے ابھی ارجنٹ کویسچن جو ہے وہ سبمٹ کیا اسپیکرز آفس۔ ہے عزم توانا اور ہمت جوان، جج ہوں تو کیا ہوا، سینے میں وطن کی محبت سے لبریز بھی دل ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج احمد پور سیال محب وطنی کے جذبے سے سرشار۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد عامر حبیب کا آرمی چیف اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مراسلہ۔ ایڈیشنل سیشن جج نے جنگ میں حصہ لینے کی اجازت طلب کر لی۔ سینے میں وطن کی محبت سے لبریز دل بھی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج احمد پور سیال محب وطنی کے جذبے سے سرشار ہیں۔ انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے اجازت طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب سٹی نیوز نیٹ ورک نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سٹی نیوز نیٹ ورک کا خراج تحسین۔ ہر محاذ پر سٹی نیوز نیٹ ورک پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی کارروائی کا منہ توڑ جواب دینے اور بھارتی طیارے مار گرانے پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں نے جشن مناتے ہوئے مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ تفصیلات ذوالکنن طاہر کی اس رپورٹ میں۔ رات کی تاریکی میں ہونے والی بزدلانہ حرکت کا دن کے اجالے میں منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ شہریوں نے بھی اس جیت کا جشن منانے کے لیے مٹھائیاں تقسیم کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کی جرات مندانہ کارروائی پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہماری پاک فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہمارے پر حملہ کیا، ہم نے دن کے اندھیرے پہ ان پہ حملہ کیا ہے۔ پاک فوج ماشاءاللہ بہت اچھی کام کر رہی ہے جناب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جنگ کے لیے ہماری فوج ہی نہیں ہے، ہماری 20 کروڑ عوام بھی فوج کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ مٹھائی اس جگہ نہیں ہے، پورے شہر میں آل اوور شہر میں بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستانی عوام کو جنگ سے ڈرانے والے اور اپنی تیاریوں کی دھمکیاں دینے والوں کے طیارے ہماری فضا میں داخل ہوئے تو پاک فضائیہ نے زمین پر مار گرائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس لیے مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ پاک فضائیہ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ ذوالکنن طاہر، فیصل آباد۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جنگی حالات نے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو اکٹھا کر دیا۔ میونسپل کارپوریشن میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ، پاک فوج زندہ باد۔ ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر خان کا کہنا تھا کہ اس وقت قوم میں 1965 کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ انڈیا کو بھرپور جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ فوج کے شانہ بشانہ قدم و قدم ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم وقت آنے پر یہ ثابت بھی کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے جیالے وطن عزیز کی فوج کے ساتھ مل کر کس طرح حفاظت کر۔ اپوزیشن لیڈر میونسپل کارپوریشن سردار ندیم صادق ڈوگر کا کہنا تھا کہ اس وقت سیاسی اختلاف ختم ہو چکا ہے، اپوزیشن حکومت ایک پیج پر موجود ہے، انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کہ ہم ہندو بنیے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ اور میں پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پاکستان آرمی کو، تمام مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈپٹی میئر چودھری عبد الغفور کا کہنا تھا اس موقع پر بھارتی آرمی کو دندان شکن جواب دینے کی سخت ضرورت ہے۔ پوری قوم آرمی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان کوئی ایک راستہ نہیں، 2 راستے نہیں ہیں، ایک راستہ ہے۔ ایک راستے بھی پورے لوگ پی ٹی آئی، مسلم لیگ،
पीपल पार्टी कोई जमात का नहीं है, सब एक हैं और पाक फौज के साथ हैं। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां ज़ियाउल रहमान का कहना था कि इस वक्त सियासी इख्तलाफ खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। हिंदू कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो शहादत से डरता नहीं है, शहादत उसके लिए एक रुतबा है। आप मौत से डरते हैं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके घर में आपको घुसकर मारेंगे। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि वो सब मुत्हिद हैं, मुल्क पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। जंग में मुस्लिम लीग नून के ज़रिए तमाम पाक फौज के हक में रैली। भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। जंग में भारतीय जहारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में मुस्लिम लीग नून की जानब से रैली निकाली गई। फौज के हक में नारेबाजी भी की गई, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा आसिफ रुड्डी का कहना था कि भारत के खिलाफ सब एक हैं, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान को ये पता नहीं चला कि ये उस कौम को इन्होंने ललकारा है जहाद जिनका बाकायदा हिस्सा है उनके बुनियादी एतकादात का। और हमारा एक एक बच्चा, ये 25 करोड़ आवाम जो है हमारी, ये एक एक बच्चा मुजाहिद है, ये एक एक बच्चा जहाद करने वाला है। रैली में शरीक तुलबा की जानिब से भी पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई, जबकि भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तुलबा का कहना था कि पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज भारत को नाको चने चबवाने की अहलियत रखती है। इंडिया ने रात के अंधेरे में हम पे हमला किया है, वो एक ऐसा बुज़दिल दुश्मन है हमारा जो कि हमेशा अंधेरे में और अंधेरे से फ़ायदा उठाता है और शाम को रात के वक्त हम पे हमला करता है। मगर हम उनकी पीठ पीछे हमला नहीं करेंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हम भारत के खिलाफ जहाद करेंगे और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट होने की खातिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम रैलियां निकाल कर फौज को बताएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। शहरियों का कहना है कि भारतीय त्यारा गिराकर पाक फौज मुबारकबाद की मुस्तहक है। भारत को भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। जो कहा था कर दिखाया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर टोबा टेक सिंह में शहबाज चौक पर शहरियों ने पाक फौज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। शहरियों की जानिब से मनहूस मोदी का पुतला भी जलाया गया। भारत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो अफवाज पाकिस्तान की जानब से ऐसा जवाब दिया गया कि शायद वो सदियों न भूल सके। भारतीय फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान की पाक फजाइया ने भरपूर जवाबी वार करते हुए न सिर्फ 2 तैयारे तबाह किए बल्कि 2 पायलट भी गिरफ्तार कर लिए, जिस पर शहरियों की जानब से शहबाज चौक पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया और फौज के हक में भरपूर नारे लगाए। हमने एक मैसेज दे दिया, हिंदुस्तान के 2 जहाज जंगी जहाज जो है वो हमने गिरा दिए। पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं, हम सब मुत्तहिद हैं और पाक फौज के साथ हैं। अगर हमें सारी कौम को मिलकर जंग लड़नी पड़ी तो हम पाक फौज के हाथ मजबूत करेंगे। इस मौका पर शहरियों की जान से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाकर अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया गया। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद भारतीय जारियत के खिलाफ सिख बरादरी ने भी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर कुर्बान करने के अज़म करते हुए पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने का इजहार किया। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद। भारतीय फौज को पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करनी महंगी पड़ गई, जिस पर पाक फौज ने जंगी तैयारे गिराए और पायलट गिरफ्तार कर लिया, जिसे फैसलाबाद में मुकीम सिख बरादरी की जानिब से सराहा गया। इस मौका पर सिख बरादरी का कहना था कि वो अरसा दराज से पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं और उन्हें यहाँ कभी कोई खतरा नहीं महसूस हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमारे मुल्क में अमन हो और हम अमन ही चाहते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज। ऐसे में उनका मजीद कहना था कि सिख बरादरी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। जब पाकिस्तानी फौज उन्हें बुलाएगी तो वो उनके पास पहुंचेंगे और जंग में शरीक होंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत जो है अपने आप को बहुत बड़ा जमहूरियत मुल्क कहता है, ठीक है, लेकिन उधर अकलीतों को कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी जो सिख बरादरी है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ है। इस दौरान सिख बरादरी की जानिब से पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41।
पाक फौज का नारा लगाएं और फौजी कटिंग फ्री करवाएं। फैसलाबाद के हेयर सैलून्स पर दीगर तमाम स्टाइल्स की कटिंग बंद कर दी गई। हेयर सैलून्स मालकान का कहना है कि अब सिर्फ और सिर्फ फौजी कटिंग ही होगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इधर नौजवान भी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दिए। उनका कहना है कि भारत के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं और फौजी कटिंग करवा के बता देना चाहते हैं कि कौम के तमाम नौजवान पाक फौज के साथ खड़े हैं। इंडिया वाले ये ज़हन से निकाल दें कि हमारी 7 लाख फौज है, हमारी 21 करोड़ अवाम फौजी है और अगली कटिंग इंशाल्लाह दिल्ली में होगी और फतह के बाद इंशाल्लाह अगली कटिंग दिल्ली में होगी, नहीं तो तब तक कटिंग नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम की जो फौज है, इसने जख्मों को अपना जेवर और मुश्किलात को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाया है। हेयर सैलून मालिक का कहना था कि अगली ब्रांच ताजमहल के साथ बनाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रांच जो होगी वो हमारी प्राइम हेयर क्लब ताजमहल के बिल्कुल सामने होगी और इंशाल्लाह मोदी अपनी ये गलतफहमी निकाल दे और उसकी वहाँ टिंड होगी। हेयर सैलून मालकन का कहना है कि भारत की बर्बादी तक मुफ्त फौजी कटिंग करते रहेंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ जुल्करनैन ताहर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान भारतीय जंगी जुनून का नशा अब उतार के छोड़ेगा, लगे हाथों कश्मीर भी आजाद करवा लेगा। चनाब कॉलेज के तलबा का फौज को दलेराना कार्रवाई पर खिराज तहसीन, खूब नारेबाजी की। कॉलेज के तलबा पाक फौज के दलेराना इकदाम से खुश, खूब नारे लगाए। तलबा ने पाक फौज और मोदी अयार को अलग अलग पैगाम दिया। मोदी साहब ये समझ रहे हैं कि वो हमें ललकार के उधर से वोट ले लेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। ठीक है, ये लास्ट टाइम जिन्होंने जो भी किया, ये 1965-70 की जंग जितनी भी हुए भूल गए हैं। इंडिया जान ले, मोदी जान ले, ये हिंदू बनिया जान ले कि इस कौम का एक एक बच्चा अपने खून के आखिरी कतरे तक ये इस अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए मौजूद है। जोशो जज्बे से भरपूर तलबा ने अल्लाह के हाथों कश्मीर आज़ाद करवाने का मुतालबा भी कर दिया। हम पाक फौज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से इंडिया ने हमें ललकारा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इसके साथ ही कश्मीर को भी आज़ाद किया जाए। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर शोबे से वाबस्ता शहरी मुल्कों कौम के लिए सीसा पलाई दीवार बने खड़े हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबादी भारतीय गीदड़ भभकियों का जवाब देने मैदान में आ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तानी बहादुर से टकराओगे तो मर जाओगे, मोदी सरकार को तलबा का करारा जवाब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी आई लव यू, पाक आर्मी आई लव यू, पाक आर्मी। शहरियों का कहना था कि दफाए वतन की खातिर दुश्मनों की सफ़ों में हलचल मचाने के लिए तैयार हैं। पाक आर्मी और हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। भारत हमारी 8 लाख फौज को नहीं ललकार रहा बल्कि उसका 21 करोड़ पाकिस्तानियों से मुकाबला है। पाक आर्मी को कि वो इस टाइम मैदान में अकेले नहीं खड़े और इंडिया की ये भूल है कि वो साथ यहाँ 8 लाख फौज से लड़ रही है। बेसिकली इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ है। यहाँ पे 7 लाख फौजी नहीं है, यहाँ पे 22 करोड़ फौजियों से वो लड़ने आ रहे हैं। एक शहरी ने तो मोदी सरकार को ललकारा और खूब ललकारा। मोदी सरकार खोखले नारे लाती है, साडे पाकिस्तान ने ਉਹਦੇ खोखले नारिਆਂ ਨੂੰ ऐसा जवाब दिता है कि ਅਸੀਂ पाकिस्तान आर्मी ਨੂੰ आई लव यू, पाकिस्तान दी कुर्बानियां नू असी पाकिस्तान दी आर्मी दे नाल खड़े हैं। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के साथ अवाम भी मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ नईम दार। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चे भी जंगी तैयारियों में मसरूफ नजर आए। टीजी ग्लोबल की जानिब से बच्चों को रोबोट्स बनाने की तरबियत दी गई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। बच्चों को मुख्तलिफ रोबोट्स बनाने की तरबियत दी गई। तलबा का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस रोबोट्स बनाना सीख रहे हैं। ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो भारत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। हमने चीता रोबोट भी देखा और वो चीते की तरह हरकत करता है। मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो इंडिया के साथ मुकाबला करेगा। छोटे बच्चों में भी इस मौके पर बड़ा जोशो जज्बा देखने को मिला। बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, मजा आ रहा है इधर। और मुझे ये बताइएगा, अगर हमारी और भारत की जंग होती है तो फिर क्या करेंगे? हम जंग करेंगे।
टेक जनरेशन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर मारिया खान का कहना था कि बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हैं कि इजादात करने वाले बने, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले नहीं। बच्चों को हम ऐसी टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाएं, उनको कोडिंग सिखाएं, प्रोग्रामिंग सिखाएं, उस लेवल पे सिखाएं लाइक हम अपने बीएस लेवल पे जाके या बहुत आगे जाके ये चीज़ें सीखते हैं। तो बेसिक मोटिव यही है कि हम इनोवेटर्स पैदा करें रादर देन कंज्यूमर्स। नन्हे तलबा का कहना था कि हम जंग से नहीं डरते, भारतीय अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। कैमरामैन अली रजा के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। पाकिस्तान से पंगा लिया तो भारत में टमाटर तो क्या घास भी नहीं उगेगी। जंग के नन्हे बच्चे भी भारतीय जारहियत के खिलाफ उठ खड़े हुए। ब्लूमफील्ड स्कूल के तलबा ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। भारतीय जारहियत के खिलाफ जंग के शहरी भी उठ खड़े हुए। स्कूलों के कमसिन बच्चों का जोश दीदनी है जो भारत को ललकार कर उसकी औकात याद दिलाते दिखाई देते हैं। इसी हवाले से ब्लूमफील्ड ग्रामर स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बच्चों का कहना था कि मोदी को उसकी औकात याद दिला देंगे। पाकिस्तानी कौम से पंगा लिया तो भारत में न टमाटर लगेंगे और न ही घास उगेगी। मोदी समझ लो हमारे से पंगा लेना, वरना मंदिरों में घंटे बजेंगे, न घास उगेगी न टमाटर उगेंगे। रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई स्कूल पहुंचकर खत्म हो गई। प्ले कार्ड्स और बैनर उठाए बच्चों का कहना है कि भारत रोजे अव्वल से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पूरी कौम अपनी फौज के साथ है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम इंडिया को देना चाहते हैं, वो किसी भूल मना रहे हैं हमारी पाक फौज उनकी ईंट से ईंट बजा देगी। पूरी कौम की तरह हम बच्चे भी अपने शाना बेशाना खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद। भारत हमेशा से कंट्रोल ऑफ लाइन की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है जो कि खिते में अमन के लिए खतरा है। खिते में अमन के लिए ज़रूरी है कि भारत जंगी साजिशों से बाज रहे और पाकिस्तान हर महाज पर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगा। शहरियों का कहना है कि पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है और भारत को छठी का दूध याद दिला देगी। भारतीय जारहियत को किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिन्नौट में निजी कॉलेज की अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। कॉलेज की तलबात ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रिंसिपल कॉलेज कहते हैं कि भारत के नापाक आज़ाइम को पाक फौज नीस्तो नाबूद कर देगी। मुल्क भर की तरह चन्योट शहर में भी पाक अफवाज से इज़हार यकजहती करते हुए निजी कॉलेज के तालबात ने रैली निकाली। रैली में कॉलेज की तालबात, टीचर्स और स्टाफ समेत प्रिंसिपल हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा ने शिरकत की। तालबात ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। हम सब के सब पाकिस्तान की फौज के साथ हैं। भारत वाले ये सोचते हैं कि हम मोदी से इजाज़त लेंगे तो वो ये सोच जहन से निकाल दें। अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर गलत नज़र देखेगा तो हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हम हार नहीं सकते और इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे और हम जीते हुए हैं और हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। हम मुसलमान हैं। हमारे मुल्क में बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो अपने इस मुल्क की कामयाबी के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस मौका पर तालबात, स्टाफ और प्रिंसिपल का कहना था कि पाक फौज भारत के नापाक अज़ाइम को मनो मिट्टी तले दफन कर देगी। इस मुल्क का बच्चा अक़वाम पाकिस्तान का बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर मर्द, हर औरत इस मुल्क के दिफा के लिए, इस कौम की इज्जत के लिए, इस मुल्क की नामूस के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक बहा देंगे। और इंडिया ये बात भूल जाए कि वो पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल सकता है। रैली के शुरका का कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र जंग लड़ने के लिए पाक अफवाज के शाना बिशाना हैं। इस मौका पर तालबात में भी अपने वतन से दिली मोहब्बत का जज्बा काबिले दीद था। पाक फौज से इज़हार यकजहती करते हुए इनका कहना था कि मुल्क का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है और नाम नहाद भारतीय सूरमाओं को हर सूरत शिकस्त होगी। कैमरामैन अली जेब के साथ बाबर मनीर, सिटी 41, चन्योट। मुल्क की खातिर जान कुर्बान हो जाए, इससे बेहतर कोई मौत नहीं। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए टोबा टेक सिंह के असातिज़ा और तलबा तालिबात भी मैदान में आ गए। कहते हैं मुल्की दिफा के लिए कौम का बच्चा बच्चा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। भूल गया है कि जब भी उसने पाकिस्तान को ललकारा है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। टोबा के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस की तालिबात और असातिज़ा पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मैदान में आ गए। असातिज़ा का कहना है कि दुश्मन मुल्क भारत की जारहियत का जिस तरह जवाब पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया है, इससे हमारा जज्बा मजीद बढ़ गया है। इंडिया वालों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि जो 70 साल हमने तैयारी की है वो आप ही के लिए की है और आज उसका आजमाने का वक्त आ गया है। हम अपने दिलो जान के साथ पाक फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ खड़े हैं और उन शेरों ने आज वो काम करके दिखाया है जिसकी सारी कौम को
उनसे तवक्का थी। इंशाल्लाह हम इंडिया को बता देना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपनी मुल्क की बका के लिए अपना तन मन धन तक कुर्बान कर देंगे और मुल्क की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तालिबात भी मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। तालिबात का कहना था कि मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जिस तरह के हम सब जानते हैं कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की है और उन्होंने हमारी पाक फौज ने उनके तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया है और इस तरह हम आगे ऐसे ही करते आएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात कैसे हैं। हमें इस वक्त अपने मुल्क का साथ देना चाहिए। हमारी पाक आर्मी हमारा बहुत साथ दे रही है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा मुल्क की सालमियत की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। ऐसे में मुल्क की तरफ मैली आंख से देखना इंडिया के लिए किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं होगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आजर नूर, सिटी 41 टोबा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देने और पाकिस्तानी फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पुलिस एहलकार भी मैदान में आ गए। एहलकारों ने पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की और हर तरह की कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक भारत बॉर्डर पर कशीदगी हुई तो सीपीओ ऑफिस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पुलिस एहलकारों ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए खूब नारेबाजी की। उनका कहना था कि मुल्क के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी से दुरेग नहीं किया जाएगा। हर हाल में पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं कि हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, उसकी सालमियत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और हम फ्रंट लाइन पे जाके अपनी फौज के साथ लड़ेंगे। वतन अजीज की सालमियत पर कुर्बान होने का जज्बा लिए इन पुलिस एहलकारों का ये भी कहना था कि हम कौम की हिफाजत तो करते ही हैं, लेकिन अगर बॉर्डर पर भी जाकर लड़ना पड़ा तो तैयार है। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ जाके बॉर्डर पर भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो हमेशा सरखरू करेंगे और कभी भी इस मुल्क को कोई भी ढा नहीं सकता। बिलाशुबा पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क है जिसे दुश्मन कभी फतह करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। कैमरामैन मोहम्मद तनवीर के साथ फरजाना सिद्दीक, सिटी 41 फैसलाबाद। सरहदों पर टेंशन हो तो हर पाकिस्तानी पुरजोश हो जाता है। जिला कौंसिल फैसलाबाद का अमला भी किसी से कम नहीं। जिला कौंसिल मुलाजमीन का कहना था कि वो जंग में पाक फौज के शाना बिशाना हिस्सा लेंगे। इस नाजुक वक्त में वो पाक आर्मी के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हिंदुस्तान को उसके हमले का जवाब हर सूरत में देना है। आज पूरी कौम को, पाकिस्तान आर्मी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पहले ही हमले में आज सुबह सुबह उनके 2 त्यारे मार गिराए। पूरी कौम उनके साथ है। मुलाजमीन का कहना था कि कौम में 1965 का जज्बा है। मुसलमान शहादत से खौफजदा नहीं और हिंदू बनिए को भागने की जगह नहीं मिलेगी। इंडिया वालों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਗਿੱਦੜੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਤਾ ਸੀ। इस मौका पर पाक आर्मी के हक में और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। जवानों ने कट मरने के जज्बे का इजहार किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।